Hello, dear students. Welcome back to our second part of SDS page. We have started the SDS page technique, and in last lecture, in part first lecture, we have discussed about the introduction of SDS page. Secondly, we have shown about the principle of SDS page. Third, we have discussed about the components involved in this technique, and lastly we have discussed about the procedure or process of SDS page. And at last I have told you a note about this about the stacking gel. The purpose of stacking gel is to line up all the sample loaded on the gel so that they enter resolving gel at the same time. Okay, so at the last we have came up to the visualization. After running of gel, we visualize the bands of protein under UV light, and we use different types of stains, like you can use Comasy blue stain, or you can go for the silver stain. So Comasy blue stain, mostly G250. Example of this Comasy blue stain is G250. This dye or stain you can use for visualization purpose. What you have to do, you have to dissolve this Comasy blue in the mixture of methanol, acetic acid and water, and then you can use for the visualization. आपको ये डाई यूज कैसे करनी है, ये डाई आपको डिजोल्व करनी है in the mixture of methanol, acetic acid and water, and then you have to stain that gel and you can visualize the bands under UV. This method is most commonly or this stain is most commonly used for visualization, and it is not sensitive. It is limited to the 100 nanogram size of proteins, and it is widely used stain for the visualization. Second is silver stain. It is a sensitive test or sensitive stain, and the limitation of detection is 0.1 to 1 nanogram of protein. So like this bands are being observed. तो जो पहला रिजल्ट है, फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ स्टेनिंग बैंड विथ वेस्टर्न ब्लॉट. सेकेंड diagram is of protein bands when stained with the Comasy blue stain, and third diagram is of silver stain. Okay, when you stain this gel with the silver stain, you can observe the results like this under UV light, and these are the protein ladder which shows the molecular weight of the proteins. Now next point is actually when gel runs. जब जेल रन होती है तब रनिंग प्रोसेस में क्या होता है वो हम इस स्लाइड में देखेंगे. ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रनिंग what actually happens. Now your gel condense your protein sample, then there is a running buffer which is made up of glycine. SDS protein complex is there, then sample buffer is there. Okay, तो रनिंग प्रोसेस में इन सब का होता क्या है वो हम देखेंगे. तो अब रनिंग बफर जो है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइसिन विच इज निगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड. देन योर सैंपल बफर इज देयर. सैंपल बफर मीन्स आप प्रोटीन सैंपल बफर में डिजोल्व करते हैं. ओके, सी I request all the students to observe first part of SDS page so that you can understand this second part. So आप सैम्पल बफर यूज करते हैं. सैम्पल बफर मीन्स जिसमें आपने प्रोटीन ऐड किया था या प्रोटीन सैंपल में आपने इस सैम्पल बफर को ऐड किया था. इट इज मेड अप ऑफ ट्रिस HCl, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल SDS, देन इट कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ग्लिसरॉल. तो इस सारे कंपोनेंट से आपका सैंपल बफर बना था. तो उसका एक कंपोनेंट है ट्रिस HCl, एंड दिस HCl ऑल्सो कैरीज मीन्स दिस
Cl, chloride, it carries the negative charge and it contains the HDS protein complex which is also a negative charge. ये HDS प्रोटीन को निगेटिव चार्ज देता है. कैसे देता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है. ओके, सो यहाँ पर हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, ग्लाइसिन इट इज निगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड, ट्रिस HCl यहाँ पर क्लोराइड आयन ये निगेटिव चार्ज होता है, and HDS protein complex it is also negative charge. Okay, so this all the three components are negative charge and your sample protein. Okay, अब इनकी मूवमेंट कैसी होती है? दिस apparatus it consists of two parts. First is stacking gel which is at the top and second is resolving gel which is at the bottom. Okay, तो stacking gel का रोल क्या है? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि स्टैकिंग जेल का रोल ही यही है. इट इज यूज टू लाइन अप मीन्स यहाँ तक सब आने चाहिए. ओके, इट इज यूज टू लाइन अप ऑल द प्रोटीन सैंपल लोडेड ऑन द जेल सो दैट दे एंटर दिस रिजॉल्विंग जेल एट सेम टाइम. ठीक है, मतलब एक साथ यहाँ पर ये पहुँचे और उसके बाद ये सेपरेटिंग जेल में सेपरेट आउट होते हैं. तो स्टैकिंग जेल क्या करता है? सारे प्रोटीन सैंपल को एक साथ इस रिजॉल्विंग लाइन तक पहुंचाता है. ओके, सो पहले कौन आता है? पहले आता है क्लोरीन, सेकंड आता है आपका HDS प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड कम्स योर ग्लाइसिन अमाइनो एसिड. व्हाई दिस सो? ऐसी पोजीशन क्यों है? पहले क्लोरीन ही क्यों, सेकेंड HDS पेज ही क्यों एंड थर्ड दिस ग्लाइसिन? वाई दिस सो? नाउ वी नो दैट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज फ्रॉम फ्रॉम निगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है, मूवमेंट कैसी होती है? निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. अब HCl क्लोरीन ये हाईली निगेटिव आयन है. ठीक है, क्लोरीन इज हाईली निगेटिव आयन सो इट विल अट्रैक्ट मोर टूवर्ड्स दिस पॉजिटिव. इसीलिए क्लोरीन पहले आएगा बिकॉज इट इज हाईली निगेटिव और हाईली निगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, इसीलिए क्लोरीन पहले. ओके, सेकेंड आपका आता है HDS प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. क्यों? बिकॉज HDS ने क्या किया है? प्रोटीन्स के सारे बॉन्ड्स ब्रेक किए हैं और HDS ये खुद निगेटिव चार्ज डिटर्जेंट है. वो अपना निगेटिव चार्ज प्रोटीन को सराउंड करता है तो हमारा प्रोटीन पूरा निगेटिव चार्ज का हो जाता है. सो सेकेंडली हमारा HDS प्रोटीन कॉम्प्लेक्स माइग्रेट होता है. ओके, जस्ट बिकॉज आवर प्रोटीन इज सराउंडेड बाय द निगेटिव चार्ज due to this HDS detergent. So HDS protein complex it runs second. और थर्ड आता है आपका glycine amino acid. Now glycine it is the negative charge amino acid. But why glycine migrates last? Because the isoelectric point. अब glycine एक amino acid है. ठीक है, ये एक ज्विटर आयन है. ज्विटर आयन मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जो प्रोटोनेटेड भी होते हैं डीप्रोटोनेटेड भी होते हैं. ठीक है, ज्विटर आयन मीन्स व्हाट? द अमाइनो एसिड्स एट डिफरेंट पीएच में वो ज्विटर आयन्स होते हैं. तो इस ग्लाइसिन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ये 5.8 है. ओके, द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दिस ग्लाइसिन इज 5.8. नाउ व्हाट हैपेंस when isoelectric point मतलब ऐसी value the pH or value in which amino acids or protein carry no charge or neutral, that is known as isoelectric point. ठीक है, ऐसा pH या ऐसी कोई वैल्यू जहाँ पर आपका अमाइनो एसिड या प्रोटीन ये कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता, इट इज न्यूट्रल, दैट इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. तो ग्लाइसिन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है? 5.8. मतलब क्या है इसका? मतलब अगर सॉल्यूशन का pH ये 5.8 है. ओके, इफ pH ऑफ सॉल्यूशन इज 5.8 देन ग्लाइसिन कैरीज नो चार्ज. ठीक है, मैंने आपको बोला कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ये ग्लाइसिन का 5.8 है. इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब ऐसा होता है अगर
सॉल्यूशन का पीएच ये 5.8 है, तो ग्लाइसिन कैरीज नो चार्ज, ग्लाइसिन इज न्यूट्रल. ओके, नाउ इफ वी पुट द ग्लाइसिन in the acidic pH like highly acidic like 2.3, तो यहाँ पर आपका ग्लाइसिन कैसे हो जाएगा, प्रोटोनेटेड होगा. और अगर मैं ग्लाइसिन को अबव आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट रखूँ, अगर बिलो रखूँ 5.8 से कम रखूँगी तो वो प्रोटोनेटेड होगा. और अगर 5.8 से ज़्यादा रखूँगी, अबव रखूँगी, हाई पीएच में रखूंगी, तो इट विल बिकम डीप्रोटोनेटेड. ओके, तो यहाँ पर ग्लाइसिन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है 5.8 और इसका पीएच क्या है, स्टैकिंग जेल का पीएच क्या है, 6.8. ओके, द पीएच ऑफ दिस स्टैकिंग जेल इज 6.8 and isoelectric point of glycine is 5.8. so it is लाइक निगेटिव टू न्यूट्रल, ये न्यूट्रल की तरफ जा रहा है. 6.8 मतलब ये अबाव आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, मतलब ये निगेटिव टू न्यूट्रल है, कंप्लीटली निगेटिव नहीं है, हाईली निगेटिव नहीं है. ओके, इट इज स्लाइटली निगेटिव टू न्यूट्रल, इसीलिए उसकी मूवमेंट जो हो रही है इट इज वेरी स्लो. गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज it is negative to neutral, so the movement of glycine is slow. But ये कहाँ होता है, दिस प्रोसेस ऑकर्स इन द स्टैकिंग जेल. जब ये सब साथ में आ जाते हैं, ऑल द प्रोटीन सैंपल व्हेन कम टुगेदर एट दिस लाइन, देन on the basis of the size and molecular weight they get separated into this second part known as the resolving gel or separating gel. तो सेकेंड पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट क्लोरीन आयन माइग्रेट होता है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका क्लोरीन आयन होगा. ओके, सो हियर इट विल बी क्लोरीन आयन एंड फर्स्ट पोजीशन आएगी क्लोरीन आयन की. वाई, बिकॉज वी नो दैट क्लोरीन इज हाईली निगेटिव, सो इट विल माइग्रेट फर्स्ट. तो मैं अभी आपको बता रही हूँ अबाउट दिस सेपरेटिंग जेल. तो सेपरेटिंग जेल में पहले आएगा क्लोरीन आयन, सेकेंड यहाँ पर आएगा ग्लाइसिन इंस्टेड ऑफ दिस एसडीएस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, सेकेंड होगा आपका ग्लाइसिन इन द सेपरेटिंग जेल. सो फर्स्ट विल कम chlorine ion, second will come glycine. Why glycine will come second? Because the pH of this separating gel is 8.8. ओके, इसका जो pH है कितना है, 8.8 और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है, 5.8. तो अब ये कैसे गया है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के अबाव गया है. ओके, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़्यादा गया है, मतलब ये डीप्रोटोनेटेड हुआ है. मीन्स व्हाट, इट विल एक्वायर निगेटिव चार्ज. डीप्रोटोनेटेड में ये निगेटिव चार्ज एक्वायर करता है एंड निगेटिव ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है. ओके, सो सेकेंड पोजिशन विल कम of glycine and third will be this HDS protein complex. Okay, so that is the movement. variation कहाँ होता है, stacking gel में फर्स्ट क्लोरीन, सेकेंड HDS प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और थर्ड आता है ग्लाइसिन. और सेपरेटिंग जेल में फर्स्ट होता है क्लोरीन बिकॉज इट इज हाईली निगेटिव, सेकेंड आता है आपका ग्लाइसिन बिकॉज पीएच चेंज हो चुका है सेपरेटिंग जेल का, इट इज 8.8 और it goes above isoelectric point, so it acquires negative charge and it will get attract towards positive. और थर्ड आपका माइग्रेट होता है HDS प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द साइज, स्मॉलर साइज ये फास्टली मूव होंगे और लार्जर साइज ये स्लोली आएंगे. ओके, एंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट ये ज़्यादा होगा वो भी स्लोली आएंगे और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ये कम होगा वो फास्टली भागेंगे. ओके, सो लाइक दिस द मूवमेंट हैपन्स. हम जो बोलते हैं कि जेल रन कर रही है, तो एक्चुअली क्या रन हो रहा है वो अभी हमने डिस्कस किया है. ओके, सो एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज माइग्रेशन और मूवमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट. मीन्स व्हाट, अगर साइज हमारे प्रोटीन की ये छोटी होगी, मॉलिक्यूलर वेट अगर कम होगा तो वो फास्टली मूव करेंगे, और अगर साइज लार्ज होगी, मॉलिक्यूलर वेट लार्ज होगा तो वो स्लोली मूव करेंगे. ओके, सो द मूवमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द weight of that protein sample. This technique is highly sensitive test because
यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। ओके, तो ये हाईली सेंसिटिव टेस्ट है। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल। अगर सैंपल हमारे पास स्मॉल अमाउंट में है देन ऑल्सो इट इज सफिशियंट। नेक्स्ट, इट इज स्टेबल केमिकली, क्रॉस लिंक जेल, स्टेबल जेल है। सो दिस आर दी एडवांटेजेस। और ये जो हाईली सेंसिटिव मैंने कहा, इट मे कम टू दी डिसएडवांटेज ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर हमें पीएच बहुत ही important रोल प्ले करता है। ओके, सो दिस हाईली सेंसिटिव टेस्ट यू कैन कंसिडर इट एज अ डिसएडवांटेज बट नॉट अ एडवांटेज। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज, पुअर बैंड रिजोल्यूशन। जो रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं, जो बैंड फॉर्म होते हैं, दे आर ऑफ वेरी रिजोल्यूशन, जो पावर होती है वो बहुत ही पुअर होती है। मीन्स व्हाट, जो विजुअलाइजेशन है, जो बैंड फॉर्मेशन है, वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में ऑब्जर्व होते हैं। नेक्स्ट, acrylamide gel is potent neurotoxin chemical. Means what? It is the strong neurotoxin chemical which can harm the mental health. Okay, so this acrylamide is potent, strong neurotoxin chemical. It may harm the brain. Gel preparation is difficult. As I told, we have to check the pH and it is very long. It requires long time to prepare the gel and it is costly. Okay, this technique is costly or the preparation of gel is costly. If we will see the application, it is used to determine the purity of protein samples. कितने अमाउंट में हमारा प्रोटीन प्यूरिफाइड है ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये क्वांटिफिकेशन टेक्निक है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। ये तो हम बैंड्स को जब देखेंगे तभी हम ये रिजल्ट इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर वेल के बहुत ही करीब बैंड फॉर्म हुआ है तो इसका मतलब उस प्रोटीन का साइज ज़्यादा है और प्रोटीन का वेट भी ज़्यादा है, तो ये इसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन ये हम इजीली कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट और साइज ऑफ द प्रोटीन. It helps to identify the disulfide bond between the protein, and it is also used in the blotting applications like Western blot, different blotting techniques के लिए भी हम this SDS पेज यूज़ कर सकते हैं. अब डिफरेंस क्या है, जैसे हमने नेटिव पेज के लेक्चर में देखा था कि पेज के दो टाइप्स हैं, नेटिव पेज एंड एसडीएस पेज. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव पेज एंड एसडीएस पेज? नेटिव पेज में प्रोटीन्स ये ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, नेटिव फॉर्म में होते हैं. हम यहाँ पर कोई भी डीनेचरिंग यूज़ नहीं करते. ओके, अगर 3D फॉर्म है तो हम 3D में ही उसे सेपरेट आउट करते हैं. वी डोंट डीनेचर इट. लेकिन एसडीएस में हम डीनेचरिंग एजेंट यूज़ करते हैं लाइक एसडीएस, ओके, विच इज़ नेगेटिव डिटर्जेंट. And these proteins are separated on the basis of charge density, size and shape. लेकिन यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया है, वो है मॉलिक्यूलर वेट, जिसे हम साइज भी बोलते हैं. ओके, देन इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ एंजाइम्स, एंड दिस एसडीएस पेज इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ साइज और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन्स. सो ये दोनों पेज के अंडर आते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. नाउ हियर इज सम क्वेश्चन बैंक फॉर यू. एंड तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, एसडीएस पेज हैज़ बीन यूज्ड, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस. तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए, एसडीएस पेज हम किस लिए यूज़ करते हैं. So these are the 4 options: to analyze different types of proteins, to characterize membrane proteins in their native conformation, to characterize enzyme activities, or to isolate the nuclear DNA. So you can answer me this question and you can answer me in the comment section. सेकेंड क्वेश्चन है, इन एन एसडीएस पेज एक्सपेरिमेंट प्रोटीन्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर. तो जब आप ये क्वेश्चंस आप तब आंसर कर सकते हैं जब आप दोनों पार्ट्स देखें, पार्ट 1 ऑफ एसडीएस पेज एंड दिस पार्ट, सो दैट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन एंड गिव मी आंसर इन द कमेंट सेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इट्स वेरी सिंपल. थर्ड क्वेश्चन है, इन एन एसडीएस पेज
जेल जेल जो एसडीएस पेज या फिर एसडीएस का रोल क्या है? ऑप्शंस हैं डीनेचुरेशन, इट हैव द सेम चार्ज टू मास रेशियो, यहाँ पर मूवमेंट कैसी होती है। तो एसडीएस पेज जो है ये क्या करती है वो आपको इस क्वेश्चन में आंसर देना एक्सपेक्टेड है कि व्हाट एक्चुअली दिस टेक्निक डज। फोर्थ क्वेश्चन इज एसडीएस पेज में जो हम प्रोटीन सैंपल इट इज फर्स्ट ट्रीटेड विद द डिटर्जेंट इन ऑर्डर टू, तो हम एसडीएस का ट्रीटमेंट प्रोटीन सैंपल पे क्यों देते हैं? दैट इज योर फोर्थ क्वेश्चन। एंड फिफ्थ इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्रोमोफिनॉल ब्लू इन द सैंपल बफर। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था बीपीबी जो सैंपल बफर के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, तो उसका रोल क्या है। तो दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस and I expect the answers of this all the 5 questions in the comment section. So this was all about the SDS page which we have completed in 2 parts. I hope you might have understood. If you have any doubt regarding this SDS page, you can ask me in comment section. Thank you.